بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک نہایت ہی اہم اور کنٹروورشل اختلافی بات، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی اہم ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے، ساری خرابی ادھر سے شروع ہوتی ہے، تو اس پر بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بات شروع کرتا ہوں بدعت سے کہ بدعت کیا ہے۔ جو میں سمجھا ہوں بدعت کو، جو علماء کرام سے ہم سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے اگر میں یہ غلط سمجھا ہوں تو ضرور میری ریکویسٹ، التماس ہے کہ آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ میں غلط سمجھا ہوں بدعت کو۔ بدعت دین میں نئی چیز، کوئی نئی چیز پیدا کر دینا، دین کا حصہ بنا دینا اس کو۔ نہیں، دین نہیں ہے، دین کے نام پر کسی چیز کو اور غیر از دین، اس کو دین کا حصہ بنا دینا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت گمراہی ہے، اور سب گمراہیاں یہ جہنم کا مال ہے، جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے بدعت، نئی چیز، جو کام نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول نے حکم دیا، نہ رسول کے سامنے ایک طرح سے ہوا، مگر آپ نے وہ کام کیا نہیں۔ میں آگے بات کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر نظر نہیں گئی، یا صحابہ کرام نے وہ کام، اگر صحابہ کرام نے بھی وہ کام نہیں کیا، سامنے ہونے کے باوجود سمجھتے ہوئے کام نہیں کیا، سمجھتے ہوئے وہ کام نہیں کیا، اور بعد میں وہ کام ہوا اور اس کو ہم نے دین کا حصہ بنا دیا، تو میرے بھائیوں، مجھے خدا کے واسطے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، سب بھائیوں سے، تمام مسلک والوں سے، اور خاص کر میں جو ہمارے غیر مقلد بھائی ہیں ان سے، جو اہل حدیث بھائی ہیں ان سے، کیا یہ بات میں جو کر رہا ہوں کہ پھر کیا یہ بدعت نہیں ہوگا کہ جو کام نہ نبی نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ نے کیا نہیں کیا، نہ عہد نبوی میں ہوا وہ کام، نہ وہ خلفائے راشدین میں، خلافت راشدہ میں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، بعد میں ہوا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ دین، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ تو کیا بدعت سے کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ وہاں خیر نکل سکتا ہے بدعت سے؟ نہیں نکل سکتا، ممکن ہی نہیں کہ بدعت سے خیر برآمد ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، میری رہنمائی کر دینا، میری اس الجھن کی سلجھا دینا ہے۔ اس کو کہنا کیا چاہتا ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تدوین حدیث ہے، حدیثوں کو جمع کرنا ہے، یہ جو کام کیا ہے جامعین حدیث نے، 6 جو ہیں، 7 ستہ ہیں ہمارے سامنے، یہ کیا ہے؟ یہ کام کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے۔ تدوین حدیث اور اس طرح جمع کر کے جو کتابیں شکل آ گئی، یہ بدعت کا کام تھا، یہ بدعت ہوئی، کیونکہ یہ کام نہ نبی نے کیا، نبی دین لے کر آئے نا، جس طرح انہوں نے
कुरान को इकट्ठा किया, 26 कातबीन वही कहा जाता है, उसको जमा लिखा। और आप सूरत तूर पढ़ें, पहली 2-3 आयत में ही उसकी बात है कि वो तो लिखा हुआ है, हाँ, रक्कन रक्कन पर, ये छील कर, जो चमड़े को छील कर जो कागज बनाया जाता उस वक्त था। ये नहीं आप कह सकते कि उस वक्त कागज नहीं था। हम तो कहते हैं ना, वो हड्डियों पर लिखा हुआ, पत्तों पर लिखा हुआ था, ठीकरियों पर लिखा हुआ था, वो इस तरह कागज के पुर्जों पर लिखा हुआ था, फिर वो थैले की शक्ल में था। जो भी ये इंतहाई गलत बात करते हैं। कि उस वक्त आप देखें, क्या तौरात और अंजील वो किस चीज पर थी? क्या वो भी थैले पर लिखी हुई थी? इस तरह ही का थैला था, ठीकरियों पर का, हड्डियों पर और पत्तों पर लिखी हुई, खजूर के पत्तों पर, जिस तरह जमाली आयत खजूर के पत्ते पर लिखी हुई थी, बकरी खा गई उसको, तो वो आयत कुरान में नहीं है। अब खैर उस तरफ नहीं जाता मैं। कुरान की बात कि ये जिस तरह मरतब किया आपने अपनी जिंदगी में किया, कुरान खुद गवाही दे रहा है। सूरत तूर को आप 2-3 आयत पहले पढ़ लें, देख लें। मैं कोई और ज्यादा लंबी बात नहीं करता, लिखा हो किताबी शक्ल में। पहले शुरू में कह दिया जालिकल किताब, किताब कहते किसे हैं? तो ये आपने किस तरह इसको मरतब फरमाया अपनी जिंदगी में? अगर ये रवायात, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी दीन का हिस्सा होते तो आप इनको भी किताबी शक्ल देकर जाते। ये आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आप समझते हैं कि ये दीन का हिस्सा है थे, फिर इसका मतलब माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि नबी ने फिर तो अपना काम पूरा नहीं किया, मुकम्मल नहीं किया। नबी ने जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी वो पूरी नहीं हुई। कुरान को बना दिया, कुरान आगे पहुंचा दिया हमें, मगर ये जिम्मेदारी जो थी, ये 250 साल बाद इमाम बुखारी और जो साहसिता के मौलफ हैं उन्होंने ये पूरी की। और उन्होंने ये रवायात अहादीस इकट्ठी करके किताबें बना के हमें दे दी। ये काम तो नबी का करने वाला था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने वाला था। नहीं हुआ, नहीं किया आपने। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आगे खिलाफत राशिदा शुरू होती है। ना ये काम हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ना मीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। किसी ने काम नहीं किया। ये तदवीन हदीस वाला किताबी शक्ल है इनको देना। अब हम सोचते हैं कि भाई उन ज़हन नहीं गया, उस तरफ ख्याल नहीं आया। कुरान सामने था, सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता साहबा मौजूद थे, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। नहीं मेरे भाई, ये बात बनती नहीं है। जब फिर कुरान भी था ना, कुरान की हिफाजत हफाज कुरान से हुई ना, कुरान हिफज करवा देते आप, बस ठीक है, लिखने की क्या जरूरत थी? लिखा गया। हाफिज भी, हफाज कराम भी तैयार किए, जमात तैयार हो गई और लिखा भी गया। अगर ये रवायात भी हिस्सा होती दीन का, हमारे भाई बोलते हैं कि ये भी दीन में उसी तरह ही हुज्जत है जिस तरह कुरान दीन में हुज्जत है, तो फिर ये क्यों नहीं है उसको कुरान की तरह क्यों नहीं आपने इसके साथ ट्रीट किया? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप फिर क्या कह रहे हैं? नबी के मनसब पर आप एक तरह से इल्जाम लग रहा है, ये बहुतान लग रहा है कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया, जबकि आप पूरा काम करके गए। आपको जो हुक्म हुआ आप करके गए हैं। हिज्जतुल वदा के मौके पर तमाम सहाबा कराम जो उस वक्त थे, उन्होंने गवाही दी कि आपने पूछा उनसे, जो भी आप जानते हैं, समझते हैं सारी बात को, शहादत दी सब ने, आपने पहुंचा दिया अल्लाह का कलाम, जो आपके जिम्मे में था आपने वो पहुंचा दिया। तो फिर मैं यह अर्ज करता हूं, कर रहा हूं, खिलाफत अहद नबवी
आप हुकूमत की बात ले लें, इनफरादी सतह पर किसी ने कुछ लिख ली, वो एक अलग बात है, उसको वो कोई हैसियत नहीं रखती चीज। किसी बंदे का इनफरादी काम, इनफरादी सतह पर कुछ लोगों ने अगर कुछ अकवाल लिख लिए, कहते हैं ठीक है जी चले, ये अलग बात है। हुकूमती सतह पर देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी हुकूमत कायम है, अहद नबवी खिलाफत हुकूमत कायम हो गई थी रियासत मदीना में, आपने हुकूमती सतह पर नहीं किया काम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला हुकूमती सतह पर नहीं किया, उमर रजी अल्लाह ताला ने नहीं किया, आगे उस्मान गनी, अली रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं किया ये काम। फिर अब मैं कहता हूं कि क्या उनका जहन नहीं इस तरफ गया? नहीं, ये बात भी नहीं, जहन गया, बड़ा वाज़े गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, आप मानते हैं या नहीं मानते कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर सोचा कि आपके अकवाल जो हैं, जो भी मिले, बहरहाल इतनी बात ही है कि उनको इस तरह किताब की शक्ल दे दी जाए, तदवील कर दी जाए। 1 महीने तक, रवायत तो यही कहती है ना, अगर ये बात गलत है तो बता दें, 1 महीने तक उस पर गौर खोज किए, इस बात पर पूरी तरह गौर खोज करने के बाद आपने फैसला फरमाया कि नहीं करना। सिर्फ इतनी बात ही नहीं कही कि आपने कि हम ये नहीं करना, उसकी आगे वजह बयान फरमाई आपने कि ये नहीं करना, और वजह ये नहीं फरमाई कि आगे अभी तो कुरान की स्याही खुश्क नहीं हुई इसलिए इसकी जरूरत नहीं, ये नहीं फरमाया। आपने जो वजह फरमाई उसका दायरा कार क़यामत तक जाता है। जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वजह बताई उसकी कि ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, आपने फरमाया पिछली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने अपने नबी के अकवाल जमा किए और फिर उन पर झुक गई और किताबुल्लाह पसे पुष्ट चली। कौमों की बर्बादी की वजह बयान फरमाते हुए आपने, पिछली कौमों की तारीखी बात फरमाते हुए ये बात बयान फरमाई आपने, और आपने ये काम ना खुद किया ना किसी को करने दिया। खुद नहीं किया, किसी को फिर जरूरत भी नहीं हुई कोई ये काम करे, आपने सबको कायल कर लिया। जो मिशावरत के साथ ये चीज तय हुई कि ये नहीं करना। अगर ये जामिन हदीस आपके दौर में होते, आप यकीनन इनको सजा देते, आप दुरे मारते इनको, क्योंकि आपने काम खुद जब तय कर लिया नहीं करना तो फिर आगे देखें। मुझे तो बहुत हैरानगी होती है, बहुत ताज्जुब होता है कि आगे आप गौर करें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत की अजमत को सलाम, आप सलाम पेश करें उनकी अजमत को, कि आपने ये फरमाया कि एक कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि वो उस पर झुक गई और किताबुल्लाह पसे पुष्ट चली गई। यानी कि जब भी ये होगा, मैंने अर्ज किया ना कि इसका दायरा कार क़यामत तक क्या है, और उसके बाद जब भी ये होगा आपके फरमान के तहत मुताबिक, आपकी पेशीन गोई के मुताबिक जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, लोग उस पर झुक जाएंगे और किताबुल्लाह पसे पुष्ट चली जाएगी। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अब आप बताएं मुझे। किताबुल्लाह पसे पुष्ट चली जाएगी और वो फरामीन ऊपर आ जाएंगे। अब हम कहते नहीं है वो कुरान इसके बगैर समझ ही नहीं आता। मैंने बड़े बड़े लोगों को कहते ये सुना कि कुरान इसके बगैर समझ नहीं आता और इसके बगैर पढ़े ना, खासकर देवबंद मकतबा फिक्र के लोग कुरान खाली इसको ना पढ़े, ये समझ नहीं आता। इसको रसूल को हदीसों से समझना है, एक और बंदे की बात हुई भी, हदीसों से समझना है, और हदीस आगे उसने फिर मजीद बात, और हदीसें सहाबा के बगैर नहीं समझ आ सकती। चलें जी मेरे भाइयों, फिर इसका मतलब जो सिर्फ हदीसों तक की बात नहीं रह गई, आगे सहाबा के अकवाल भी आ गए। ना उनकी कोई किताबी शक्ल है, किसी सहाबी के अकवाल जो फरामीन है उनकी कोई किताबी शक्ल, उनका तो बात ही बात की है। लेकिन वो कहते नहीं जी, हदीस कुरान हदीस का मोहताज, और हदीस आगे सहाबा के अकवाल की मोहताज। हमारे लिए तो कवाल ही होंगे ना उनके।
मेरे भाइयों ये क्या बात है, कुरान मोहताज है समझाने। वो कहता है हमने इसको आसान कर दिया तुम्हारे लिए ताकि तुम समझो। तो वो तो कुरान इंडिपेंडेंट अपने तौर पर समझने की बात करता है, इसको कुरान को कुरान से समझने की बात करता है, तशरीफ आयात की बात नहीं करता। कुरान कहता नहीं है हमने आयात को फेर फेर कर बयान किया है ताकि तुम समझ जाओ। वहां क्या क्या बात करने की जरूरत थी, ये नबी तुम्हें समझाने के लिए है, ये कह देते। बेशक नबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे समझाने के लिए। तो मेरे भाइयों बस मैं ये बिदत की बात बहुत लंबी है, इस पर बहुत बात की जा सकती है, बहुत सारे इसमें से मौजू निकलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये तो बिदत का काम है। या मुझे आप बता दें मेरे गैर मुकल्लद भाइयों, मेरे अहले हदीस भाइयों, आप हम भाई हैं, इख्तलाफ हो जाता है बातों में, क्या बिदत, बिदत की डेफिनेशन बता दें मुझे, बिदत किसे कहते हैं? क्या ये बिदत नहीं है, नई चीज नहीं हो गई? मुझे समझ नहीं आती कि मैं ये बात किस तरह समझाऊं या किस तरह करूं फिर बात समझ में आएगी। मैं तो कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, दो टोक बात कर रहा। तो दीन, अच्छा अब जो कहते हैं कि ये नबी का फरमान हुज्जत है था जब आपका अहद, आप 63 साल जिंदगी, जो 23 साल दीनी जिंदगी है, उस वक्त आपका जो फरमान था कुरान से बाहर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो वो हुज्जत उसको कह सकते थे, अब नहीं। अब ये सीना बसीना बगैर कुछ लिखे हुए मवाद के ये आगे आई हैं। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। अब देखिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 256 इनका हिजरी वफात है, तकरीबन 6 लाख इन्होंने अहादीस रवायात इकट्ठी की और उसमें कितनी कबूल समझी, कबूल फरमाई? 2762, सिर्फ 6 लाख में से। क्या मतलब, वो हदीसें नहीं थी, रवायात ही पहुंची ना अब तक। तो आपने इंडिपेंडेंट अपने तौर पर अकेले, को बोर्ड नहीं उस वक्त उलमा कराम का बन गया कि बहुत सारे उलमा कराम ने मिलकर एक बोर्ड बना के कोई क्राइटेरिया मुकर्रर करके तो 2700 जो समथिंग अहादीस हैं उनको क्लियर किया कि यहाँ ये नबी के फरमान है। ये बात तो नहीं, अकेले थे, अपनी बसीरत के मुताबिक बहुत नेक होंगे, बड़ी बसीरत उनकी आला थी, होगी, मान लिया, इस पर कलाम नहीं कोई। कि इसका मतलब इतनी लाखों में रवायात, वजी रवायात बन चुकी थी, वजह हो चुकी थी उस वक्त। तो फिर मेरे भाइयों हम किस बुनियाद पर ये दीन की फिर क्या बुनियाद बना रहे? इतनी खोखली बुनियाद, अफाकी दीन, क़यामत तक इसने रहना है, लोगों के लिए रहमत है। अगर हम कहते हैं ना हमारे सल्ला का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, तो आप रहमतुल्लिल आलमीन ये दीन की वजह से ही है। और क्या अब क्या आपकी रहमत हमारे लिए क्या कैसे है आप बता दें। जो हाजिर और नाजिर मानते हैं उनका अलग मामला है, आप तो नहीं मानते। मेरे गैर मुकल्लद भाई, अहले हदीस भाई, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर तो नहीं मानते। अब वो फिर आपकी रहमत अब किस तरह है? दीन के जरिए ही है, ये दीन ही बायस रहमत है हमारे लिए। आपका लाया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, दोनों का एक ही है। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता था, मैं यही बात सोच रहा था कि यार ये क्या है बिदअत वाले काम से, और फिर कैसे बरामद कैसे हुआ ही नहीं, क्या बरामद हुआ? अब हो गया, ये आगे किताबें तो क्या, तमाम इख्तलाफात की बुनियाद ही ये है। मैं आगे बात करता हूँ, कुरान तो आया ही इख्तलाफात खत्म करने के लिए, ना इसके अंदर इख्तलाफ है और ये आया ही इख्तलाफ खत्म करने के लिए, और इसने सदियों की दुश्मनियां खत्म करवा दी। ये कुरान का दावा आल इमरान और कई जगह पर है, तुम्हारी सदियों की दुश्मनियां थी जिनको जो खत्म हो गई। तो ये थी, अब क्यों नहीं हो रहे? तो अब इसलिए नहीं हो रहे
یہ پسے پشت چلا گیا ہے، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، مانے یا نہ مانے۔ ہمارے اختلافات ختم نہ ہونے کی وجہ اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ یہ پسے پشت چلا گیا ہے۔ اگر یہ سامنے ہوتا ممکن ہی نہیں ہے کہ اختلاف نہ ختم ہو جاتے۔ ہمیں آخر قول فیصل اس قرآن کو، صرف قرآن کو بنانا ہوگا، پھر ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں کرتا ہوں بعد میں سردست صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں بدعت کیا ہے۔ میں اس چیز کو، یہ جمع تدوین حدیث والا کام جو یہ جامعین حدیث نے کیا، یہ جو صحابہ اس کے مؤلف جو یہ کام جو انہوں نے کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت والا کام کیا انہوں نے، یہ بدعت والا کام کیا، اور بدعت سے خیر برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کہتا ہوں، آپ پلیز سب بھائی میرے اس میں میری رہنمائی فرما دیں کہ میں یہ اس میں کس حد تک غلط ہوں، میں کیا غلط بات کر رہا ہوں، پلیز ضرور رہنمائی فرما دیں۔ میں سچی بات، میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں بالکل میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں عالم ہوں۔ الجھنیں اتنی ہیں، میں ان کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی الجھنوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے ہمیں بھی، ہم کوئی صحیح طریقے سے اگر جائیں اللہ کے حضور تو کلیئر ہو کر جائیں، دلیل کے ساتھ جئیں، دلیل کے ساتھ مریں۔ قرآن خود کہتا ہے، دلیل کیا، کلیئر تو ہو ہمارے سامنے یہ ساری بات، کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ؟ تو بس میرے اچھے بھائیوں، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس پر میری آپ رہنمائی کریں۔ بس میں یہ کہوں گا، آپ میری اس بات میری رہنمائی کریں۔ میں کہتا ہوں قرآن محتاج نہیں ہے کسی چیز کا۔ اب ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، بالکل حرف حرف ہمارے پاس وہی آ گیا۔ آپ نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، ہم نے بھی اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ بس اتباع کرنے میں، پیروی کرنے میں، اطاعت میں ہم نبی کے ہم پلہ ہے۔ پیروی کرنے میں نبی نے قرآن کی پیروی کی، اطاعت کی، ہم نے بھی اس کی کرنی، اور ہمیں اس کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اور نبی نے خود بھی اس کی پیروی کی۔ بس میرے بھائیوں، باتیں جتنی چاہے آپ لمبی کرتے جائیں، ہوتی جائیں، لیکن بس میں سردست اتنی لمبی بات ہوگی ساری یہی کہنا چاہتا ہوں۔ بس آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آپ پلیز میری رہنمائی کر دیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کے واسطے کہتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی الجھن ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام اختلافات کی جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ یہی ہے۔ تو پلیز آپ اس پر میری رہنمائی کر دیں کہ مسئلہ کس طرح یہ کلیئر ہوگا، یہ بدعت والا مسئلہ۔ آپ بدعت کے معاملے میں میری رہنمائی کر دیں۔ دوسری نشست میں بات کروں گا انشاءاللہ اس کے جو اختلافات والی جو بات ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔